Students, as we have discussed in last class regarding the lines of latitude and longitude, now today I am going to explain you how longitude is important in our day-to-day life. Longitudes are very important. It is not only used for purpose of locating a place on the globe, on the map, but it is also used to calculate time. Have you ever thought that how clocks all over the world shows same time? What is the basic principle behind that? There is something unique regarding the time, and that is lies in longitudes. When we are discussing the longitude, we have also seen one important longitude, that is prime meridian, that passes from 0 degree longitude and joining both the poles. This is called prime meridian. Why? Because with the reference of this particular longitude, time in the world is calculating. This is prime meridian. I think you are unable to see. In last class I have already explained. Again I am drawing just like a globe, and this is the 0 degree lines of longitude. It is called prime meridian. So with the reference of prime meridian, time has been calculated. How? We are going to discuss this. You might be surprised, or you might be questioned that, sir, this thing is not been given in the book. It is right, but you should know this concept. This thing has been already been discussed, or you have been taught when you are in class 6 or 7. So now just focus how we are going to calculate the time. It is very interesting and based upon the calculation. So just try to understand. You know that Earth is having two kinds of motions. One is called rotation, one is called revolution. Rotation means just taking around on its own axis. Have you ever seen the top? Have you ever seen the fan, the ceiling fan or the table fan having its own axis, and the blades of the fan is rotating just like this way? This is called rotation. This is called rotation. And Earth is also having one more motion, that is called revolution. Revolution means just going around the sun. So both the motions Earth is having, and it has been performed simultaneously. So what we know, it is the rotation of the Earth due to which we experience day and night. We know that this is basic principle. The portion of the Earth that come in front of the sun gets light, and it is the daytime over there. And as time passes, once the portion of the Earth thus goes backward. So what we were discussing? We are discussing that the portion of the Earth that comes in front of the sun gets light and is daytime, and the portion of the Earth that goes at the back of the sun that having the night time. So on this particular basis we are going to discuss, and you have been noticed that after 24 hours day and night just comes. So it means that Earth rotates on its axis and complete one complete rotation in 24 hours. Just see what I have written. Earth takes 24 hours to complete one rotation. One rotation. Complete rotation means Earth rotates 360 degree on its axis in 24 hours. 24 hours, 360 degree on its axis. So by this, through the unitary method, Earth just rotate 15 degree in 1 hour. It is simple calculation. And then after, what we get? So Earth takes nearly 1 hour to complete rotation of 15 degree. Means in 1 hour Earth rotate by 15 degree on its axis. So by doing this, what we get? So Earth takes 4 minutes to rotate 1 degree on its axis. Means Earth 1 डिग्री घूमने के लिए अपने रोटेशन, अपने एक्सिस पे 4 मिनट का समय लेती है। 1 डिग्री अपने एक्सिस पे रोटेट करने में अर्थ को
4 मिनट का समय लगता है। ये कैलकुलेशंस याद रखेंगे। तो कई बार हम बात करने के क्रम में हम सिंपली ये कहेंगे कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट, लेकिन यहाँ ये वैल्यू नहीं है कि 1 डिग्री का वैल्यू 4 मिनट है। एक्चुअली 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। एक्चुअली मैथमेटिकली 1 degree equals to 60 minute. This is the symbol of 60 minute. But what I mean to say, मैं ये कह रहा हूँ कि Earth takes 4 minute to rotate 1 degree on its axis. 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट और 1 डिग्री का वैल्यू होता है 60 मिनट। फिर से मैं लिख रहा हूँ कि 1 डिग्री रोटेट इक्वल्स टू 4 मिनट्स, टेक्स 4 मिनट्स। तो ये कैलकुलेशंस याद रखेंगे और इसी कैलकुलेशन पे किसी भी स्थान के टाइम्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और याद रखिएगा ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसे हमने कहा प्राइम मेरिडियन, इट इज पासिंग थ्रू द ग्रीनविच मीन ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड इन लंदन। तो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से ये पास करती है और उसी के अकॉर्डिंगली टाइम की कैलकुलेशन होती है। जो भी टाइम होगी यहाँ पे उसी के रेफरेंस में on the basis of longitudinal distance from the prime meridian time has been calculated। तो अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे अलग अलग जगहों पे टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। और अगर आपको याद होगा हमने देखा कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। फिर से ध्यान देंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखिए ये वेरी वास्ट एक्सटेंट है, बहुत बड़ा एक्सटेंट, लेकिन फिर भी क्या है भारत की सभी घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। अगर इस आधार पे काम करेंगे तो ये डिफरेंस समझ में आएगा, फिर हम समझ में आएगा कि क्यों इस डिफरेंस के बावजूद हिंदुस्तान की सभी घड़ियां एक ही समय दिखाती है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस एंड जस्ट सी हाउ टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरी। नाउ this is one example that we are going to discuss how to calculate time. I hope that you are able to see the board clearly. I have drawn three it is vertical lines and this referring longitude. One is showing 10 degree east longitude, one is showing 10 degree west longitude, W for west, E for east, and it is 0 degree, that is GMT, that is prime meridian. So I have written at prime meridian the time is showing 12 noon. 12 noon, do you know 12 noon? 12 o'clock midday, जिसको कहते हैं 12 बजे, ठीक 12 बजे दोपहर। और आपको पता है कि इस ठीक 12 बजे सन बिल्कुल अहेड होती है आपके सर के बिल्कुल ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, तब बिल्कुल सीधे। उस समय आपकी शरीर की छाया धरती पर सबसे छोटी होती है, आप ये कहिए कि छाया बिल्कुल नहीं बनती है। खैर ये अलग पोर्शन है, अभी फिलहाल चलते हैं। तो अब हमें समय बताना है कि 10 डिग्री ईस्ट यानी कि ए प्लेस ए पे टाइम क्या होगा और ये बी पे टाइम क्या होगा। टाइम इक्वल्स टू व्हाट, यहां भी टाइम इक्वल्स टू व्हाट। तो बच्चों अब करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द position of this GMT and the timing. It is 12 o'clock noon, and if we are going to calculate the time at A, so we have to see the longitudinal position of longitudinal position of place A. So first of all what we have to do, we have to write longitudinal difference between GMT means 0 degree and A, and the difference is 10 degree minus 0 degree equals to 10 degree. This is the difference, longitudinal difference 10 degree. So therefore 10 degree equals to 10 into 4 minute equals to 40 minute. So student you can see ये जो 10 डिग्री का डिफरेंस है GMT से, यानी अगर मान ले कि इस GMT को अगर हम मान लेते हैं ये प्लेस C है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि GMT लिखे या प्लेस C लिखे,
तो बिटवीन सी यानी 0 डिग्री एंड ए के बीच की लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस कितनी है? 10 डिग्री। अब 10 डिग्री को हमने टाइम में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। यहां क्या था कॉन्सेप्ट कि 1 डिग्री रोटेशन में, रोटेशन के लिए अर्थ को क्या चाहिए? 4 मिनट का समय। तो यानी अर्थ को 10 डिग्री मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए कितना समय चाहिए? 40 मिनट का। तो अब यहीं से सवाल आता है, तो देयरफॉर टाइम एट ए इक्वल्स टू व्हाट? तो इसमें जब हम जीएमटी से जब हम मूव करते हैं, अगर हम इस प्रकार से खड़े हो या डायरेक्शन को आप देखना चाहते हैं तो ऐसे, फिर से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जब हम जीएमटी से ईस्ट की ओर बढ़ते हैं या किसी भी लॉन्गिट्यूड से अगर हम ईस्टर्न डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो टाइम हमेशा प्लस में होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे 12 नून तो 12 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 12:40 PM, यानी ये दोपहर के 12:40 हुए। उसी प्रकार से अगर टाइम एट बी निकालना हो तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस यहां पे क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा? 10 डिग्री होगा। इसको समय में कैलकुलेट करेंगे तो 4, तो यानी कि 40 मिनट। तो टाइम एट बी क्या होगा? 12 माइनस 40 मिनट, यानी यहां 11:20 AM होंगे। ये ध्यान दीजिए, आपने नोटिस किया होगा जब हम किसी भी लॉन्गिट्यूड के ईस्ट मूव करते हैं तो समय बढ़ता है, यानी कि एड ऑन होता है। पूर्व के समय में जितना समय उतने लॉन्गिट्यूड को कवर करने में अर्थ को लगेगी वो समय हम ऐड करते हैं, और जब हम वेस्ट की ओर मूव करते हैं तो उतना समय उसमें से हम घटाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हमें जीएमटी का समय पता हो तो हम किसी भी प्लेस का, अगर हमें लॉन्गिट्यूड पता है तो हम वहां की समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया है, तो यहां से हम एक और चीज देखते हैं कि यदि हम यहां पे क्या करें कि इस जीएमटी को हम मिटा देते हैं। अब इसी से कैलकुलेट करेंगे। एक नया सवाल यहीं से निकल के आएगा, कैसे हम लोग करते हैं आप देख पाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम दो लॉन्गिट्यूड को आपस में रखेंगे जिसमें जीएमटी नहीं होगी। अब हम सपोज करते हैं कि यहां पर बी पर 12:20 PM हो रहा है, तो टाइम एट ए पे निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल, अगर आप बोलेंगे कि सर डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो गौर कीजिएगा यहां पे, ये डिफरेंस जो है 10 डिग्री वेस्ट और 10 डिग्री ईस्ट, ये विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूड है, यानी 0 डिग्री है। तो गौर कीजिएगा, हमने माना कि यहां 0 डिग्री ये लॉन्गिट्यूड है, ये प्राइम मेरिडियन हमने माना, उसी के रेफरेंस में ये 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री की डिस्टेंस है यहां से, और यहां से भी ये 10 डिग्री की डिस्टेंस है। तो अब आप गौर करेंगे टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच कितनी हुई? तो 10 और 10, यानी 10 + 10 20 डिग्री हुई। यही ध्यान रखना है बच्चों, ये 20 डिग्री का ये रेफरेंस हो गया। तो अब देखेंगे यहां पे सबसे पहले निकालेंगे सिंस लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आप देखेंगे दो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये 10 डिग्री वेस्ट प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड में है और 10 डिग्री ईस्ट प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में है। तो इस प्रकार से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये दूरी जो है इन दोनों के बीच की दूरी वो दोनों ऐड ऑन हो जाएगी, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं प्राइम मेरिडियन के रूप में हूं, ये इधर 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, तो दोनों हाथों के बीच की दूरी, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा, तो ये यहां पे हो जाएगी 10 + 10 डिग्री इक्वल्स टू 20 डिग्री। अब देयरफॉर इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर ले तो हम लिखेंगे 20 डिग्री इक्वल्स टू 20 × 4 इक्वल्स टू 80 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर 20 मिनट। बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। तो अब सवाल है कि हमें टाइम निकालना है कहां पे? तो टाइम निकालना है हमें ए पर।
ए का समय क्या होगा। और मैंने क्या कहा कि जब हम मूव कर, तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि बी पे जो समय है 12:20 हो रहे हैं एंड वी गेट द डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री longitudinal difference. It has been converted into minute. Now it become 1 hour 20 minutes. So now the question is, what will be the time at A? So as I have told you कि when we move towards east of any longitude, time will add. Means जैसे ही आप किसी भी लॉन्गिट्यूड के ईस्ट मूव करेंगे तो वहां पे जो पूर्व का समय है यानी पहले लॉन्गिट्यूड में जो समय है उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस के समय को ऐड ऑन करेंगे। इसका मतलब कि टाइम एट ए क्या होगा 12:20 प्लस 1 hour 20 minute। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा ये 13 into 14 आवर्स। इसको सिंपल ये 24 आवर के क्लॉक में है, अगर हम इसको 12 आवर के क्लॉक में कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 1:40 PM। ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। यानी जब भी हम किसी भी लॉन्गिट्यूड के ईस्ट साइड में मूव करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो समय ऐड ऑन होगा, और अगर वेस्ट में मूव करते हैं तो समय में हम जो पूर्व के समय से उसके डिफरेंस को घटा देते हैं। अब इसी से एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सारी चीजों को लगभग मैं उसी प्रकार से रखता हूं और इसको अब हम उल्टे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने इसी चीज को हम निकालते हैं कि बी पे समय क्या है, और यहाँ पे उसी प्रकार से हम देखेंगे। यहाँ का समय हमने देखा 1 hour 40 minute हो रहा है, या हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा ये 5 PM है, और अब हमें निकालना है कि टाइम एट बी क्या होगा। तो अब हम फिर से निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स बताइए क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर से ये देखिए दो अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये हम अगर प्राइम मेरिडियन कर ले तो यहाँ से ये 10 डिग्री और यहाँ से ये 10 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो गए 10 इधर और 10 इधर। तो टोटल डिस्टेंस यानी टोटल डिफरेंस कितने हो गए इसमें, तो फिर से 20 डिग्री के डिफरेंस है, 20 डिग्री के डिफरेंस हो गए। तो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, तो हम देख लेते हैं 10 प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो फिर से हम क्या कर ले, यहाँ पे इसको टाइम में कैलकुलेट कर ले, तो देयरफॉर 20 डिग्री इक्वल्स टू 20 into 4 मिनट इक्वल्स टू 80 मिनट। देखिए जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20 डिग्री, तो मेरे कहने का मतलब है आप ऐसे में लिख सकते हैं कि अर्थ टेक्स 80 मिनट टू रोटेट 20 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। फिर से मैं कह रहा हूँ 20 डिग्री मैथमेटिकली 20 डिग्री इक्वल्स टू 20 into 4 लिखना गलत होगा। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको हम वर्ड के रूप में लिख सकते हैं कि अर्थ टेक्स 80 मिनट्स टू रोटेट 20 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। तो हमारा कितना समय आ गया 80 मिनट। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि once we move towards the east of any longitude, time will be add. Over here we have to move towards the western direction. तो मतलब क्या होगा कि टाइम लैप्स करेगी, टाइम को हम यहाँ पे घटाएंगे। तो घटाएंगे का मतलब क्या है कि यहाँ 5 PM हो रही है, तो यहाँ पे समय कितना होगा, तो हम यहाँ से समय अगर घटाना शुरू करें तो क्या होना चाहिए बताइए, 80 मिनट है वो घटेगा, तो यहाँ पे 5 PM है और इसमें से आप 80 मिनट्स घटाएंगे, अर्थात 5 PM में से 1 hour 20 मिनट्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 3:40 क्या मिलेगा PM मिलेगा। 3:40 वहां पे होंगे। अब इसी से अगर देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम मेरिडियन पे सी पे समय क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, आप देखेंगे यहाँ 5 बज रहे हैं तो यहाँ तक ये लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस 10 डिग्री का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 into 4 डिग्री इक्वल्स टू 40 मिनट। तो यहाँ पे 10 डिग्री
इंटू 4 मिनट 40 मिनट, तो समय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 40 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4:20 हो जाएंगे। सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। तो ये अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर कुछ कठिनाई है तो देखिए ये हो गया 3:40 PM, ये चीज। Students, I hope that you are able to understand the concept of longitude with respect to calculating time. Now, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया के समय को हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इंडिया के विषय में पढ़ेंगे। तो आपको उसके लिए क्या याद रखना है, इंडिया की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। यहीं से अब हमें एक नए प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। एक नया ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, हाउ टाइम लैग इज नियरली 2 hours in India, but all watches in India showing same time. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे कि इंडियाज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है? याद है, मतलब क्या था, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है हमारा कैलकुलेशन। तो अब अगर आप गौर से देखें, तो अगर आप इसके डिफरेंस को देखें इंडिया के एक से दूसरे पॉइंट की ओर, यानी 68 डिग्री से 97 की तरफ, मतलब आप ये देखिए, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और यहाँ अगर आप देखें तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो ये जो भाग है ये आपकी, हम मानते हैं ये गुजरात है, और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये भी याद रखने की चीज है कि जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका गुजरात है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका इंडिया का वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया का ये जो है गुजरात से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है। अब इन दोनों के बीच, ये लॉन्गिट्यूड है, इंडिया का एक्सटेंट है। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर हम निकालें, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, तो ये अप्रॉक्स, अगर 97.25 से 68 डिग्री 7 मिनट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट अप्रॉक्स 30 डिग्री, अप्रॉक्स लगभग 30 डिग्री का ये डिफरेंस आएगा। तो 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो अब समझिए, इंडिया के वेस्टर्न से ईस्टर्न पार्ट के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है, और अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करें तो इट बिकम 120 मिनट, मतलब 2 hours का डिफरेंस है यहाँ। अर्थात कि स्वयं भारत के अंदर ही क्या है, तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सभी की घड़ियां एक ही समय दिखाती है। तो ऐसा क्यों? Why, even though there is a time lag of 2 hours in India, but all watches in India showing same time? तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, उसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये जो टाइम जोन होती है, प्रत्येक दुनिया के प्रत्येक देश की अपनी टाइम जोन होती है, और उसकी अपनी एक मेरिडियन होती है जिसके रेफरेंस में वो समय को कैलकुलेट करती है। तो इंडिया के क्रम में अगर हम बात करें तो इंडिया हैज बीन चूजन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो मेरिडियन चुना गया है इंडिया में, वो है हमारा 82 डिग्री एंड हाफ मिनट ईस्ट। इसको ऐसे में लिखते हैं 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट। ये जो है वो हमारे लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। ये इंडिया के लिए मेरिडियन का काम करता है। इसी के रेफरेंस में हम कैलकुलेट करते हैं हिंदुस्तान के समय को, और इसी के कारण हिंदुस्तान की सभी घड़ियां एक ही समय को दिखाती हैं। क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो इस प्रकार से हम टाइम की कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारे ऑफिस आवर एक हैं, सब कुछ एक है, इसीलिए चूंकि हम इस 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट को
हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए मेरिडियन मानते हैं। अब यहाँ से सवाल होता है कि why 82.5 degree east meridian has been taken for calculating time for India? Why it has been shown Indian Standard Time with reference to calculating the time for India? क्यों 82.5 ही? एक्सटेंड तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, तो क्यों यही हम लेते हैं? हम इसके अलावा दूसरी क्यों नहीं ले सकते? 70 क्यों नहीं लिया, 72 क्यों नहीं लिया, 75 क्यों नहीं लिया? तो इसके दो कारण हैं। वो कारण क्या है? तो सबसे पहले ये जो लैंगिट्यूड है ये आपके मिड ऑफ इंडिया से जाती है। मिड ऑफ इंडिया जानते हैं कहां से? तो ये है इलाहाबाद, ये इलाहाबाद से ये क्रॉस करती है। ये याद रखना है बच्चों कि 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज क्रॉसिंग फ्रॉम इलाहाबाद। और दूसरा क्यों इसको ही लेते हैं? तो पहला कारण ये कि ये मिड ऑफ इंडिया से पास करती है, और दूसरा हम लेते हैं एक और वजह, ज्योग्राफी में समय की कैलकुलेशन करते हैं तो उसी मेरिडियन को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं उस देश के लिए। जैसे इन्हें लिखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो मेरिडियन पूरी तरीके से 7.5 डिग्री से डिविजिबल हो। क्या हो? डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो किसी भी देश की समय की गणना करने के लिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लेंगे, दैट मेरिडियन मस्ट पासिंग फ्रॉम मिड ऑफ द कंट्री एंड मस्ट बी completely divisible by 7.5 degree. With that particular reference, with that particular principle, for calculating time in India, we have chosen 82.5 degree east longitude as a standard meridian. So with that reference, all watches in India is showing the time, same time everywhere in India. तो अब हम देखेंगे कि वास्तव में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी में क्या रिश्ता है, कितने समय का अंतर है। बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि 82.5 डिग्री ही क्यों? तो मैंने कहा मिड से जाती है यानी इलाहाबाद से पास से, और 7.5 डिग्री से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने क्रम में विथ रेफरेंस टू जीएमटी कैसे हम करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कैसे करेंगे, बस ये ध्यान रखने की जरूरत है। अभी आपने तुरंत सॉल्व किया है, जो मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल बनवाए थे उसी प्रकार से ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार से एक ड्रॉ करेंगे, दो लॉन्गिट्यूड्स को, एक जीएमटी को दिखाते हुए और एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को दिखाते हुए। तो ये है रहा फिर से सवाल, ये 0 डिग्री यानी जीएमटी टाइम। हम सपोज करते हैं कि जीएमटी टाइम यहाँ पे क्या हो रही है, तो 12 नून है यहाँ, ठीक दोपहर। और ये है हमारा इंडिया, और ये है 82.5 डिग्री ईस्ट इंडिया। तो बताइए यहाँ पे टाइम क्या होगा इंडिया में? टाइम इक्वल्स टू व्हाट? फिर से वही सवाल, देखिए ये ईस्टर्न डायरेक्शन में है यानी ईस्टर्न साइड में, तो जो भी ग्रीनविच मीन टाइम होगा उसमें यहाँ क्या होगा, समय ऐड होगी, टाइम प्लस कर देंगे हम यहाँ पे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे समय निकालने के लिए? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस। तो कितना होगा लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री सॉरी माइनस 0 डिग्री, तो क्या निकल के आएगा 82.5 डिग्री। अब गौर कीजिए, अब इसको हम टाइम में कैलकुलेट करेंगे। तो लिखते हैं सिंस 1 डिग्री, या डिटेल लिख दे, कंफ्यूजन नहीं हो, फिर बार बार मैं समझाया हूं आपको कि सिंस अर्थ टेक्स 4 मिनट टू रोटेट 1 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, therefore earth takes कैसे समय निकालेंगे? तो 82.5 डिग्री मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखें तो गौर कीजिएगा, हम ऐसे भी कर सकते 82 इंटू 4 प्लस 30 मिनट। क्यों किया हमने ऐसा? तो गौर करेंगे 30 मिनट हमने क्यों किया। यहाँ क्या है, हाफ डिग्री, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, तो इसीलिए हाफ डिग्री
तो 1/2 डिग्री इक्वल्स टू 30 मिनट। तो मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल सकता है आंसर बताइए। गौर करें क्या क्या मिलेगा, सोचिए। या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको एक और तरीका से करने की कोशिश करें हम लोग। तो नहीं, पहले इसी तरह करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको हम लोग 82.5, आसान तरीका, फिर ये भी तरीका बताता हूँ। 82.5 इंटू 4 कर लेता हूँ, तो ये मिल जाएगा 330 मिनट। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि 82 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो यू विल गेट हाउ, और उसमें फिर हाफ मिनट का जो वैल्यू है 30 उसको ऐड कर देंगे, वहां से ही वैल्यू आएगा। तो 330 मिनट है, तो ये कितना हो गया आपका 5 आवर्स 30 मिनट। तो 5 आवर 30 मिनट्स मतलब कि इंडिया में टाइम क्या होगा, ऐड ऑन करेंगे तो 12 प्लस 5 आवर्स 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 5:30 PM। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड by 530 minutes from GMT time। इसको मैं ऐसे लिख दूं, लगता है कि आप शायद देख नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। तो समय कितना निकला हमारा 3 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ पे समय कितना था 12 नून, और इसमें हम 5 आवर्स 30 मिनट ऐड ऑन कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा आपका 5:30 PM। ये 5 आवर्स, इसको ठीक से 5 आवर्स 30 मिनट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 5:30 PM कहाँ होगा, इंडिया पे। मतलब क्या निकल के आया कि GMT से ये अहेड होती है 5:30 आवर्स, कहाँ, इंडिया का समय। 5 घंटा 30 मिनट इंडिया का समय GMT समय से आगे चलती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे हम समय को कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरा तरीका जो बता सकते टाइम कैलकुलेट करने के लिए, आप ऐसे देखें 82.5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 4। इसको कैलकुलेट सावधानी बरतने की जरूरत है। बार बार बच्चे यहाँ गलती करते हैं। गलती क्या होती है कि ऐसे करते हैं 82 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 4, ऐसे। चूंकि ये डिग्री है, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये देखिए 2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा 8, और 8 4 जा 328 प्लस 2 इक्वल्स टू 330 मिनट। तो यहाँ भी वही है और यहाँ से भी हम उसी प्रकार से, तो जो भी आपको मेथड आसान लगे। कई बार बच्चे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है क्या है, कंफ्यूजन क्या होती है उनकी, कंफ्यूजन होती है कि वो इससे 2 से इस 4 को कट कर देते हैं, परिणाम 82 इंटू 4 हो जाती है, बच्चों का आंसर नहीं निकल पाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इस प्रकार से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर फ्यू फैक्ट्स। नंबर 1, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट time with reference to longitude of a place. We have also seen कि Earth takes 1 hour to rotate 15 degree on its axis. Second, we also get Earth takes 4 minutes to rotate 1 degree on its axis. And then after what we have learned? We have learned कि time has been calculated with respect to the GMT time. और GMT 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के अगर ईस्ट मूव करते हैं तो समय ऐड होती है, और वेस्ट मूव करते हैं तो समय को हम डिक्रीज करते हैं। तो ये हमारा समरी हुआ। और एक चीज और जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि इवन दो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स इन इंडिया, बट ऑल वॉचेज इन इंडिया आर शोइंग सेम टाइम। तो हमने देखा कि व्हाई, बिकॉज इंडिया हैज चूजन इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन एज अ 82.5 डिग्री ईस्ट। And why 82.5 degree has been chosen? I have explained that it is passing through mid of the country, means from Allahabad. And second, we have also seen that it is the principle that we can choose only those meridian as a standard meridian that is completely divisible by 7.5 degree, and it is with 82.5 degree. So it has been chosen as a standard meridian for इंडिया। और आपने देखा कि GMT टाइम यानी ग्रीनविच मीन टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटा अधिक है, और वो उससे अधिक होता, अहेड होता है। और इस प्रकार से ये टाइम का कैलकुलेशन, अब मुझे
भरोसा है कि I believe that you all are having the great concept of calculating time. So you have to remember, and it is a very funny thing but interesting fact.